A pastor during a church service says loudly in the mic. एक पास्टर था जो चर्च की सर्विस में बहुत जोर से गाता था, जोर से बोलता था। He said this so loudly in the mic. उसने कुछ कहा बड़ी जोर से माइक में। He said, all the men who are controlled by their wife move to the left. उन्होंने कहा कि जितने भी मेन हैं जो वाइफ के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं लेफ्ट में मूव हो जाएं। So almost the whole church got up and moved to the left. पूरा चर्च खड़ा हो गया और मूव लेफ्ट में मूव हो But गया। one man sat to the right. और एक इंसान था वहाँ पे जो राइट में बैठा रहा। So pastor was so happy to see at least one man sat on the right hand side. पास्टर बहुत खुश हुआ कि एटलीस्ट एक इंसान जो लेफ्ट में बैठा रहा। So he went to that man and he said, brother, I'm so happy to see at least you sat on the right side. उसने कहा कि भाई मैं बहुत खुश हुआ कि एटलीस्ट आप राइट साइड पे बैठे हुए। But tell me, what is the secret that your wife cannot control you? और उसने कहा कि मुझे भी वो सीक्रेट बताओ कि आपकी बीवी आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। And this man looks straight into the pastor's eyes and says, वो इंसान पास्टर की आंखों में देखता है और कहता है, my wife told me to sit right here and not move at any cost. उसने कहा कि मेरी वाइफ ने मुझे बोला है कि राइट हैंड साइड पे बैठो और यहाँ से बिल्कुल हिलना नहीं है। So he was the most controlled man in that church. और वो पूरा कंट्रोल मैन था उस चर्च में। That man understood that real victory in marriage is surrender to wife. उसको पता लग गया था जो अगर जो विक्ट्री है जो विजय है वो तभी है अगर आप सरेंडर करके रखो वाइफ को। I have titled my sermon as Victory in Surrender. आज का मेरा टाइटल है विक्ट्री इन सरेंडर। I'm not going to preach to wives and how to surrender, make their husband surrender in marriage. मैं बीवियों को नहीं प्रीच करने जा रही कि कैसे अपने हस्बैंड्स को सरेंडर करना है उनके सामने। But this is for each one of us how to achieve that victory and be victorious Christians when we surrender to God. ये हमारे लिए सबके लिए है कि कैसे हम परमेश्वर के आगे सरेंडर करते हैं और हम विक्टोरियस होते हैं। Surrender in Hebrew is called hikana. जो सरेंडर का मतलब है हिब्रू में, इब्रानी भाषा में है हिकाना। It means come into alignment उसका मतलब है एक लाइन में आना or arrangement और अरेंजमेंट में under the command of God परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा and walk in that way that God has put. और उसी जगह पर चलना जहां पे परमेश्वर ने जगह आपके लिए रखी हुई है। It literally means to turn away इसका मतलब है कि मुड़ना from your opinions or from your own strategies, अपने थॉट से अपने तरीकों के द्वारा, but instead choose God's will. परमेश्वर की दिल को चुनना। In simple words, surrender means the act of yielding or submitting to the authority of God. अगर आसान शब्दों में कहें कि परमेश्वर के आगे पूरी तरह से झुकना। Today I'm going to speak about how we can live a victorious life while we still surrender to God. आज हम बोलने जा रही हूँ कि हम कैसे अपना जीवन विक्टोरियस जी सकते हैं जब हम अपने परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हैं। 2 weeks ago I did a same sermon with same title as Victory in Surrender. 2 वीक मैंने सेम टाइटल के द्वारा एक सरमन दिया था विक्ट्री इन सरेंडर। And I spoke from the life of Joshua, from the book of Joshua, chapter 7 and 8. मैंने यहोशू की किताब से 7वां और 8वां से प्रचार किया था। And I encourage that you can go back and listen to that sermon. मैं आपको encourage करूंगा कि आप उस सरमन को YouTube पर सुन सकते हैं। And also to pastor's sermon last week. और पास्टर के सरमन को भी सुन सकते हैं जो लास्ट वीक There he spoke about how to remain blessed in hard times. जहाँ पर लिखा था कि remain blessed, कैसे हम blessed रह सकते हैं मुश्किल समय में। In today's world, surrender means it is considered as a point of weakness. आज के समय में अगर आप सरेंडर करते हैं तो आप कमजोर कहलाए जाते हैं। But in Christian world, the word surrender means victory. अगर हम परमेश्वर के साथ जब क्रिश्चियन वर्ल्ड में चलते हैं तो सरेंडर मीन्स है कि विजय। Because when you surrender to God, you're coming into a partnership with God. जब आप सरेंडर करते हैं परमेश्वर के सामने तो आप एक पार्टनरशिप में आ जाते हैं परमेश्वर के साथ। And you are making God as your team leader to lead you into the path of success and victory. परमेश्वर को आप अपना टीम लीडर बनाते हैं कि वो आपको सक्सेस में लेके चल सके। Today it is a reminder for each one of us as we surrender, God is going to lead us into paths of victory. आज Hallelujah. हमारे सामने एक रिमाइंडर है कि हम परमेश्वर के सामने जब सरेंडर कर सकते हैं तो वो हमें एक विक्ट्री में विजय में लेकर चले। I want you to turn to book of Exodus chapter 17. निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय। I would read verses 11 and 15. उसकी 11वीं से 15वीं आयत तक। As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. Verse 15. Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." 11 and 15. जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब
वह उसे नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। Moses built an altar and called it Jehovah Nissi. मूसा ने वेदी को बनाया और उसको बताया कि यहोवा निसी। This is a very famous story which every Christian who has gone to a Sunday school would know by heart. ये एक बड़ी फेमस स्टोरी है जो संडे स्कूल बच्चे जाते हैं उनको पता होता है इस स्टोरी के बारे में। But I'll give you a context of what the story is about. मैं आपको थोड़ा बताऊंगी इसका किस चीज के बारे में है ये कहानी। This chapter 17 starts with how Israelites left the desert of sin and entered the place called Rephidim. यहाँ पे बताता है कि जब इजराइलियों ने वो डेजर्ट को छोड़ा और उस जगह पर आए जिसका नाम था रेफिडिम। Now the Israelites has just crossed the Red Sea. जो इजरायली थे उन्होंने अभी लाल समुद्र को पार ही किया They था were led out of Egypt from slavery. और वो स्लेवरी से वो बंधुआई से बाहर ही निकले Now थे they are walking towards their promised land. और वो प्रॉमिस लैंड की तरफ चल रहे थे। And that promised land is the land of Canaan, a land flowing with milk and honey. और वो जगह थी जो दूध और शहद जहाँ पर बहता था जिसका नाम था कैनन। Now between the crossing the Red Sea and the promised land, the Israelites had to go through this path called wilderness. जहाँ पर जो प्रॉमिस लैंड से पहले और लाल समुद्र के पास जो एक जगह था वो उस जगह का नाम था बियाबान। And this promised land they have never seen or heard, it they just received as a promise from the Lord. उन्होंने ऐसा कुछ उसके बारे में सुना नहीं था, ये सिर्फ एक परमेश्वर का वायदा था जो उन्होंने रिसीव किया था। And they have set out as per God's direction and under the leadership of Moses. और वो उन्होंने मोसेस की अगुवाई के द्वारा उसके साथ चल रहे थे। The journey through wilderness is not a very pleasant one. जो बियाबान की जो एक रास्ता है, जो जर्नी है, वो अच्छी जर्नी नहीं है। We need to understand that the Israelites were living as slaves for many years and they are accustomed to a different lifestyle. हमें समझने की जरूरत है जो इजरायली थे बहुत साल तक वो एक बंधुआई में थे और वो एक इस लाइफस्टाइल से इसको नहीं जानते थे। And now they are set on this journey and they are walking through this wilderness by faith that they will reach the promised land. और वो इस रास्ते पर चल रहे हैं, सोच रहे हैं विश्वास के साथ कि एक दिन वो इस जगह पर पहुंच जाएंगे। They are just following this leader who could by the authority of God rip open the Red Sea that they will soon enter the promised और land. वो अपने लीडर को फॉलो करते हुए जिसने परमेश्वर की शक्ति के द्वारा उस लाल समुद्र को 2 भाग में किया था कि वो वहां तक पहुंच सके। The scholars say that the time they took to reach this place, the Rephidim, is approximately 40 days. विद्वान कहते हैं कि जो इस जगह रेफिदम जो है उसका जब तक वहां वो पहुंचे थे 40 दिन का समय लगा था। So from the time they left Goshen in Egypt to this place where they reached in Exodus 17, it was the 40th day. जो गोशन को छोड़ के जो इजिप्ट में है, जब वहां से वो निकले थे वो 40वें दिन इस जगह पर पहुंचे थे। And this 40 days they have been walking through. और इस 40 दिन वो सिर्फ चल ही रहे हैं। And they're walking through this wilderness with an expectation, okay, tomorrow probably we'll have the promised land there. और वे सोचते हुए चल रहे हैं कि कल हम प्रॉमिस लैंड में पहुंच जाएंगे। Wilderness is not a pleasant one, as I said. जो बियाबान है वो अच्छी जगह नहीं है। It is a dark phase in any man's life. वो एक अंधेरी चीज है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन Because में, it is filled with so much uncertainties वो कई चीजों से भरी होती है, बुरी and चीजों से so भरी many होती है questions, और बहुत सारे प्रश्न से भरी so होती many है doubts, और बहुत सारे डाउट से भरी होती है so much fear. और डर से भरी होती है। But the only assurance is we'll reach there soon. उनकी सिर्फ एक ही एश्योरेंस के हम बहुत जल्दी वहां पर पहुंचने वाले हैं। Exodus 17 says that they camped at Rephidim. निर्गमन 17 में कहता है कि रेफिडिम में उन्होंने अपना तंबू लगाया। Now the word Rephidim means rest or support. रेफिडिम का मतलब है रेस्ट या सपोर्ट। But if you read verse 1 and 2, अगर हम 17वें चैप्टर की पहली आयत पढ़ते हैं, the whole Israelite community set out from the desert of sin, traveling from place to place as the Lord commanded. They camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink, so they quarreled with Moses. फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। And they didn't just quarrel, but they grumbled against Moses, says Bible. वो कुड़कुड़ाने ना लगे बल्कि मूसा को भी कुछ ना कुछ बोलने लगे। Because they didn't have water to drink, they went against the leader. और उनके पास जब पानी नहीं था तो वो अपने लीडर के आगे अगेंस्ट चले गए। And verse 7 says they even came to a place where they said, "Is the
Lord among us or not? और यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया कि परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं। Now they reached a place called rest or support, जो यहाँ पर पहुंच गए थे, जहाँ जिसका मतलब है रेस्ट और सपोर्ट। and the 40th day of journey, 40वें दिन उस समय में they meant to relax there and revive their energy, but they are there quarreling for something they don't have. वो रिलैक्स कर रहे हैं और वो उस चीज के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं जो उनके पास नहीं है। They were quarreling, they were murmuring, they were grumbling because there was no water for the people of वो Israel. कुड़कुड़ाते रहे क्योंकि वहां पर उनके लिए पानी नहीं था। Last week, Pastor spoke on how to remain blessed in hard times. पर पास्टर ने लास्ट वीक बोला था कि कैसे आशीषित रहे मुश्किल समय I में। don't know how many of you remember, he spoke to us about the importance of number 40 in Bible. मुझे पता नहीं कितने लोगों को याद है कि नंबर 14 के बारे में पास्टर ने बताया। Now 40 is a sign of trials and testings. 40 का जो समय है वो ट्रायल और टेम्पटेशन का है। Now 40 is a sign of preparation. 40 जो नंबर है वो तैयारी का And नंबर है। it also represents a spiritual transformation. और वो ये भी बताता है जब आपकी आत्मा कैसे बदलती है। Someone asked me last week, they texted me and asked, how old is pastor going to be? किसी ने मुझे पूछा कि 40 पास्टर कितने साल के होने वाले हैं, And they were expecting me to say 40. और वो सोच रहे थे कि 40, And I didn't say 40. And their plans were crashed. और मैंने बताया नहीं कि 40, और उनके I'm not प्लान going से to क्रैश reveal हो गए। pastor's age today. But you know that 40 is a big number to celebrate even in today's culture. आज का जो 40 नंबर है, आज उसको लोग सेलिब्रेट करते For हैं। somehow we hold on to a prominence around this number 40. किसी तरीके से 40 जो नंबर है हम उसको पकड़ के रखते हैं। But 40, as I said, it is a representation of preparation and spiritual transformation for a Christian's life. जो 40 नंबर है वो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बदलाव है मसीही जीवन में वो दिखाता है। Noah experienced 40 days of flood, day and night, and God started new beginnings after that. नूह ने 40 दिन का जो बाढ़ थी उसको देखा, फ्लड्स थे उसको देखा, और उसके बाद उसने एक्सपीरियंस किया परमेश्वर के गुडनेस को। Moses spent 40 days on the mountain of Sinai to receive the commandments and direction from God. 40 दिन तक 40 दिन में के बाद मूसा ने परमेश्वर के कमांडमेंट को रिसीव किया। Enoch was running away in the fear of Jezebel and reached at Mount Horeb on the 40th day to receive a renewed instructions from God. इनोक को 40वें दिन परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी। Jesus fasted for 40 days and overcame the temptation of the enemy. यीशु ने 40 दिन तक उपवास रखा और वो ओवरकम हुए दुश्मन की चाल पर। Israelites could have been victorious similar way. इजरायलियों को भी वही तरीके से विक्ट्री मिल सकती थी। They have traveled for 40 days. वो 40 दिन तक उन्होंने सफर को किया। And here they are facing a grave problem that they don't have water. और यहाँ पर वो एक बड़ी परेशानी को फेस कर रहे हैं जहाँ पर उनके पास पानी नहीं था। Now if you read chapter 16, जब आप 16वें अध्याय को पढ़ते हैं, you see the Israelites were complaining for food. और इजरायली जो थे वो खाने के लिए कंप्लेन कर रहे They were complaining that did you bring us out of Egypt to die here? उन्होंने मूसा को कहा कि तू हमें इजिप्ट से यहाँ लेके आया मरने के लिए। And they go to a point of saying we were eating onions and cucumbers happily in Egypt, but you brought us to starve and die here. वो कहने लगे कि हम प्याज और जो कुकुम्बर वो बड़ी खुशी से वहां पर खा रहे थे और तू यहाँ पे हमें मरने के लिए लेके आ गया। But God miraculously, Bible says, He provided manna and quail. परमेश्वर ने बड़ी अद्भुताई के द्वारा उनको मन्ना वहां पर प्रोवाइड किया। Not just once, but day after day. एक ही दिन नहीं पर हर दिन उनको प्रोवाइड Not just little, but enough for a family to eat sufficiently and throw away the rest. थोड़ा नहीं बल्कि बहुत अच्छे से उनको प्रोवाइड किया कि वो अच्छे से खा सके और जो बाकी बचा हो उसको फेंक सके। And now they enter chapter 17. Here they are again complaining for water. और 17वें अध्याय में फिर से वो कंप्लेन कर रहे हैं। Some of us are like that. हम में से कुछ लोग ऐसे हैं। We forget what God has done so easily when we encounter a problem. हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से काम किया, और जब हम उसको भूल जाते हैं जब कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे Even though the Israelites have experienced God on day-to-day basis, इजरायलियों ने रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर के मिरेकल्स को देखा था। they have experienced God's fellowship on a day-to-day उन्होंने basis, परमेश्वर के फेलोशिप को देखा था रोजमर्रा की जिंदगी में, and they witnessed miracles after miracles. और उन्होंने बहुत
विटनेस किए, उन्होंने गवाहियां देखी उस जगह पे जो परमेश्वर ने बड़े काम उनके जीवन में Not just that, God was walking with them day and night right from the time they left Egypt. और परमेश्वर उनके साथ रात और दिन चलता था जब से उन्होंने इजिप्ट को छोड़ा था। Nothing mattered to them. उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं किया। When they came to a place of need in their life, they just forgot everything. जब उनको कोई जरूरत आई उनके जीवन में तो वो परमेश्वर को भूल गए। All that walk with God, all that experiences, that supernatural power of God didn't play any role as they encountered a need or a problem in their life. और जो परमेश्वर ने बड़े काम किए थे उनके जीवन में, जो बड़े अचंभे किए थे, वो सब कुछ भूल गए जब उनको इस जरूरत पड़ी। This is one of my favorite quotes. ये मेरा एक फेवरेट कोट है। It says we repeat what we don't repair. यहाँ पे लिखा है कि हम उस चीज को दोबारा करते हैं जिस चीज को हम ठीक नहीं करते। We repeat, we tend to do the same things because we are so busy not to repair it. हम उस चीज को दोबारा करते हैं जिस चीज को हम रिपेयर नहीं करते। The Israelites were encountering the favor of God, experiencing the walk with God day and night, and here comes a small need for water. They go to a point of asking, is God even among us? इजरायली जो थे दिन और रात परमेश्वर के मिरेकल्स को, अचंभों को देख रहे थे, पर इस छोटी जरूरत के समय वो सब कुछ भूल गए और ये बोलने लगे कि परमेश्वर हमारे साथ है या भी नहीं। It was not just about the need, but it was about the character they were carrying ये वो inside. जरूरत नहीं थी, ये उनके अंदर का वो कैरेक्टर था, वो जो कैरी कर रहे थे अपने It साथ। was about coming to God when you have a need and your need done and you go off. वो ये चीज है कि जब आप परमेश्वर की जरूरत होती है, परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप वो पूरी हो जाते हो, आप मूव हो जाते हैं वहां से। Because they do not carry the strength to face that situation in faith and surrender before वो God. उस शक्ति को अपने अंदर लेके नहीं चले, विश्वास को लेके नहीं चले जो परमेश्वर की ओर से है जब हम सरेंडर करते हैं। Exodus 17 is a powerful reminder for every child of God how to face situations in life. निर्गमन 17 एक रिमाइंडर है हर विश्वासी के लिए जब हम मुश्किलों में से गुजरते हैं। Last week's sermon was from Psalm 34 and verse 19. लास्ट वीक का जो सरमन था वो भजन संहिता 34 उसका 19 वर्स था। I would encourage each one of you to by heart. मैं आपको इनकरेज करूंगी उसको याद करें। The righteous man may face many troubles, but the Lord delivers them from all. जो राइचियस है बहुत सारी मुश्किलों का सामना करेगा पर परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। हालेलुया। He will deliver his children from all the troubles and they will not be left for suffering. परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाएगा और वो ऐसे ही छोड़े नहीं जाएंगे। God is a gracious God. परमेश्वर हमारा दयावान परमेश्वर है। He is a faithful वो God. हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। Even the Israelites were murmuring and complaining and they were even questioning God. इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे और परमेश्वर से आगे प्रश्न कर रहे थे। He yet delivered the Israel by sending water out of the rock. वो फिर भी परमेश्वर ने अपने दया दिखाई और पत्थर से पानी को निकाला। Verse 7 says, Moses called the place Massah and Meribah because the Israelites quarreled and because they tested the Lord saying, is the Lord among us or not? और 7वीं आयत में लिखा है कि मूसा ने उस स्थान का नाम मसा और मरीबा रखा क्योंकि इजरायलियों ने वहां वादी विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। And the story suddenly shifts in verse 8. और 8वीं आयत में पूरी जो कहानी है बिल्कुल मुड़ जाती है। And it starts with saying the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. और वहां पे लिखा है कि अमेलेकी जो थे उन्होंने इजरायलियों के ऊपर हमला किया। The place was meant to rest and revive has now become a spot of attack from the enemy. जो जगह थी वो एक रेस्ट के लिए थी जो और पर सडनली वहां पर लोगों ने दुश्मनों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। Because it didn't actually start with resting in faith, but it started with complaining. वो रेस्ट के ऊपर नहीं स्टार्ट हुई, वो मरमरिंग के ऊपर कुड़कुड़ाने के ऊपर जगह शुरू हुआ। Because the place they went there, they started it with questioning God's presence and provision. जब वो उस जगह पर गए तो परमेश्वर के जो प्रोविजन परमेश्वर जो उनकी जरूरतों पूरी करते आया था उसके ऊपर उन्होंने प्रश्न करने शुरू किए। Listen to this carefully. इसको ध्यान से सुने। The word Amalekite, जो अमेलेक वर्ड है, it is similar to a Hebrew word called Sephek. इब्रानी का जो वर्ड है उसको बोलते हैं सफेक। It means that it is doubt. उसका मतलब है डाउट करना। It means that in a way spiritual blindness. उसका मतलब है जो स्पिरिचुअल अंधापन है। Every child of God who goes through this phase of wilderness, जो भी परमेश्वर का जो बेटा या बेटी है जो इस बियाबान के सफर में से निकलते हैं, where you feel you're stuck,
जहाँ पे आप सोचते हैं आप रुक गए हैं, where you are in need, जहाँ पे आप सोचते हैं आपको जरूरत है, and where you feel like you're in a wilderness phase where no one else can help you. जहाँ पे आप सोचते हैं आप एक बियाबान में, जहाँ पे आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। Remember that the enemy is roaming around to throw that seeds of doubt into your life. आपको याद रखने की जरूरत है, जो दुश्मन है वो घूम रहा है वहां पर, उस सीड को, आपके बीज को आपकी तरफ फेंकने के लिए, जो डाउट का बीज है। Remember that when your focus shifts from God's presence and provision, जब आपको याद रखना है कि जब आप अपना फोकस दूसरी जगह पर लगा लेते हैं, when your focus moves from faith, position of faith, आपका जो फोकस है वो विश्वास से अलग हो जाता है, the enemy is ready there to attack you with disruption. जो दुश्मन है वो आपको हमला करने के लिए तैयार है पूरे तरीके से। It will wait there to bring such a disturbance. वो एक गड़बड़ी पैदा करेगा उस जगह पर, It brings disobedience. वो वहां पर डिसोबीडियंट लेके It जाएगा, brings out sin and pride. वहां पर पाप और घमंड लेके And आएगा, it brings a distraction in a way that you will forget the purpose why you are even there. वो आपको अलग किसी से और लेके चलेगा कि जहां पर आप सोचोगे कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। I believe the Holy Spirit is speaking to some hearts this morning. मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा आज किसी दिल से बात कर रहा है। The Israelites thought, oh, we received the water, and they're like quenching their thirst from this water from the rock. इजरायलियों ने सोचा अभी उनको पानी मिल गया और वो पानी पीना शुरू करने और अपनी प्यास बुझाने लगे। And Bible says the Amalekites came and attacked the Israelites. और बाइबल कहती है कि अमेलेकाइट्स वहां पर आए, उन्होंने इजरायलियों के ऊपर हमला किया। This is the first war that Israelites are fighting. और ये पहली लड़ाई थी जो इजरायलियों ने लड़ी। They didn't get any notice, they didn't get any warning. They came without any indication and attacked the Israelites. उनको कोई दुश्मन की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला, वो बस उन्होंने उनके ऊपर, इजरायलियों के ऊपर अटैक कर दिया। I like how verses 4 and 5 says the Lord met their needs when Moses cried out to the Lord. जब बाइबल कहती है 4वीं आयत में कि जब मूसा ने दुहाई दी, परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया। It says that even irrespective of how the Israelites behaved, even in that moment, God was faithful to give them their need. इजरायलियों ने जैसे भी परमेश्वर के सामने बिहेव किया, परमेश्वर विश्वास योग्य था और परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया। That's the God we serve, church. हाँ, ऐसा परमेश्वर हम सर्व करते हैं। He is a faithful God. वो एक विश्वास योग्य He is a परमेश्वर है। loving God. वो एक प्यार करने वाला He is परमेश्वर a है। God full of grace. वो परमेश्वर दयावान He परमेश्वर is a है। God of compassion. वो परमेश्वर जो दया दिखाता है। And He loves us to the point that He even didn't spare His own life on the cross. वो इतना हमें प्यार करता है कि उसने अपनी जिंदगी को भी इस क्रूस पर बख्शा नहीं, So that you and I would live in the freedom of Christ. कि Hallelujah. मैं और आप परमेश्वर की आजादी में जी सके। हालेलुया। 2 Corinthians 8:9. Remember this verse if you want to grow richer. 2 कुरिन्थियन उसकी 8. 8वीं और 9वीं आयत। It says, His grace is so abundant over us that though He was rich, yet for our sake He became poor, so that through His poverty you and I will become rich in Jesus' name. Hallelujah. हालेलुया। उसकी दया इतनी है कि वो हमारे लिए गरीब बन गया कि मैं और आप अमीर बन सकें। Do not run after the needs when you have a big fat weapon in your hands. That's the faith. उस चीजों के पीछे ना भागे जो आपके पास एक बड़ा हथियार परमेश्वर ने दिया हुआ है, जिसका नाम है विश्वास। God provided water through the rock, and probably the people were thinking, yes, we want this over God. ओ परमेश्वर ने उस पत्थर में से जब पानी को दिया तो लोगों ने सोचा कि हाँ हम जीत गए। Little did they know that the enemy is roaming around for such a moment so that it can come and पर attack. उनको ये पता नहीं था कि दुश्मन उनके आस-पास घूम रहा है उनको हमला करने के लिए। When you allow this sort of doubts in your life, the enemy comes to weaken your faith. जब आप ऐसे छोटे-छोटे डाउट्स परमेश्वर के ऊपर करते हैं तो दुश्मन आता है और आपके विश्वास को कमजोर करता है। Bible says he became poor so that you may become rich. बाइबल कहती है वो गरीब बन गया कि हम अमीर हो सके। But when we come encounter situations, we are so wavered in our faith that enemy throws a doubt simply at us. जब हम ऐसी जगह पर आ जाते हैं जब हमारा जो विश्वास है डगमगाता है और दुश्मन हम पर हमला करता है। Simply our focus shifts from God, His plans, His promises, and we start doubting what He even called us for. वो हमारा जो फोकस है परमेश्वर की ओर से हटाकर हमें डाउट में लगाता है और हम उस चीज से परे हो जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। 1 Peter chapter 5 and verse 8 says, "Be careful, the enemy is roaming around like a roaring lion." पहले पत्रस में लिखा हुआ है कि ध्यान से रहें क्योंकि वो भूखे शेर की मानद आस-पास घूम रहा है। Seeking someone to devour. वो किसी को ढूंढ रहा है कि किसी को नाश कर सके। Not just to attack, but to devour. फिर सिर्फ हमला नहीं बल्कि नाश कर सके।
The enemy doesn't need your whole life to destroy you. उसको पूरी आपका जीवन नहीं चाहिए आपको नाश करने के लिए। The enemy does not need your whole attention to attack you. उसको आपका पूरा अटेंशन नहीं चाहिए आपको आपके ऊपर हमला करने के It लिए। just needs a little space in your life. उसको बस थोड़ी सी जगह चाहिए आपके जीवन And में। you allow that, it will take whole control over you. अगर आप थोड़ा सा उसको जगह देंगे तो वो पूरा कंट्रोल आपके ऊपर कर लेगा। The most effective weapon of where enemy is, जो सबसे अच्छा जो यूजफुल इफेक्टिव जो हथियार है, it will create a doubt in your mind and weaken your faith. वो आपके दिमाग में एक डाउट पैदा करेगा और आपका विश्वास को कमजोर God करेगा। said, I will make you more than conquerors. This is my eternal promise to बाइबल you. कहती है कि मैं तुम्हें विजेते से ऊपर बनाऊंगा, ये बाइबल कहती है। And then the small situation, small problem, we'll move our faith from there and start focusing on this और problem. जब थोड़ी सी परेशानी आती है, छोटी सी मुसीबत आती है, हम परमेश्वर से फोकस हटाकर उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं। It just needs a loophole to distract you and derail you from the plans of God. थोड़ी सी बस जगह चाहिए परमेश्वर दुश्मन को परमेश्वर को ओर से आपको हटाने के लिए। I heard the story on Insta मैंने ये कहानी सुनी इंस्टा पर, where this preacher is sharing this story. ये प्रचारक जो शेयर कर रहा है इस कहानी को। As I said, the enemy doesn't need your whole life. जैसे मैंने कहा कि आपका जीवन दुश्मन को पूरा नहीं चाहिए, It just needs a little space to devour you. उसका थोड़ा सा उसको हिस्सा चाहिए जहाँ पे आपको नाश कर सके। He told a beautiful story about how a man approaches a house. उसने कहा, इस कहानी को कहा कि एक इंसान कैसे एक घर को की ओर बढ़ता है। He goes on to knocking the door, उसने वहां पर जाकर वो दरवाजे को and the खटखटाता है। owner of the house opens the door. जो मालिक था उस घर का, वो उस घर को वो दरवाजे को ओपन करता है। And this guy tells him that I want to buy your house. वो कहता है कि मुझे तेरे घर को खरीदना है। But the owner says, I'm not willing to sell it. वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बेचना चाहता इस घर को। But this man was so persistent. He said, I will not move from here unless you sell it. And he gives a price to the owner. तो ये इंसान कहता है मैं यहाँ से हटने वाला नहीं जब तक तू मुझे इस घर का प्राइस नहीं देगा। The owner disagrees and he shuts the door. वो ओनर जो होता है वो मना कर देता है और बंद कर देता है दरवाजे को। And this man keeps going for some time, increasing the quotation. और वो बार बार ये इंसान वहाँ पे जाता है और प्राइस को जो मूल था उसको बढ़ाता रहता The है। owner's response remained the same. He said, no, I'm not interested in selling this house. जो ओनर था वो सेम चीज बार बार उसको बोलता रहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसको बेचने के लिए। So one day this man again goes and knocks the door. और एक दिन फिर से वो ये इंसान जाता है और दरवाजे को खटखटाता है। He tells the man that, okay, don't sell me your house, वो कहता है कि अच्छा तू मुझे अपना घर मत बेच, but just give me a wall in your house and I'll give you the quotation I laid it before you. पर एक दीवार मुझे दे दे और जो मैं वही तुझे कोटेशन दूंगा जो मैंने तुझे The बताया। owner of the house thinks that this is a very good deal. He's going to give me so many millions. I'll let him take one wall. जो घर का मालिक होता है वो कहता है अच्छा मुझे बहुत पैसा देने वाला है, मैं इसको एक वॉल दे देता हूँ। So the owner asks, what are you going to do just with a wall? मालिक पूछता है कि तू क्या करने वाला है एक दीवार के साथ? So this man says, I'll just put a nail on that wall. वो कहता है कि मैं बस एक नेल एक कील ठोकने वाला हूँ। And this owner says, okay, that's not a problem, and he sells that particular wall for him. वो कहता है अच्छा कोई परेशानी नहीं, मैं तेरे को ये दीवार बेच देता हूँ। So the man gives that money to this owner and goes away. वो इंसान था उसे ओनर को पैसा देता है और चला जाता है। And this owner is so happy with the amount he made just by selling one wall. और जो ये मालिक था बड़ा खुश हुआ है कि एक दीवार बेच के इतना सारा पैसा। So this man comes next day और ये इंसान दोबारा से अगले दिन आता है with a dead animal's head in his hand. और एक मरे हुए जानवर का सिर लेकर, And he tries to take it inside the house. और वो अंदर लेके जाने की कोशिश करता है। But the owner stops him saying that you can't bring this into my और house. मालिक कहता है कि तू ये सिर को अंदर नहीं लेके आ सकता। So this man says, do you remember I own the wall in your house? वो कहता है तुझे याद है कि मैं ये दीवार को खरीदा है मैंने तेरे से? He goes, the owner cannot say anything because he sold that part of the house. और अभी वो ओनर उसको कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसने उस पार्ट को उसको बेच दिया। He goes and hangs this dead animal's head on that nail. और वो जाता है उस सर को वहां पर जाके टांग देता है। After a few days, there's a stink in that house. There's a pungent smell in the house. थोड़े दिन के बाद पूरे घर में बदबू फैल जाती है। The owner cannot do anything because he does not own that wall. और जो मालिक है वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उसको ओन नहीं करता, उसने खरीदा नहीं, उसकी He tried to talk the man out and take that head off from that place. वो उस इंसान से बात करने की कोशिश करता है, कहने की कोशिश करता है कि उस सिर को वहां से निकाल दे। But the man doesn't listen. He says he still remains the owner of that wall. वो कहता है नहीं मैं वो उसकी बात को सुनता नहीं और वो क्योंकि वो दीवार का ओनर है। And there comes a point where the head decays to a point that there are so many flies and moth and
these worms are coming out of that head. जब एक समय आता है जब वो सर जो पूरे तरीके से सड़ जाता है, जब मक्खियां घूमती हैं और वर्म्स घूमते हैं और बदबू आती है। And it is intolerable for that owner to stay around that wall. अभी बड़ा मुश्किल हो गया था उसके साथ उसको उस घर में रहना। And just not just that, the smell spreads all throughout the house that the owner had to leave the house. और and go. ये नहीं कि पूरे घर में वो स्मेल फैल जाती है और उसको घर को छोड़ना पड़ता है। Do not give a foothold to devil. थोड़ा सा भी जगह शैतान को ना दे अपने जीवन में। A little foothold is enough to captivate your life. थोड़ी सी जगह बहुत है उसके लिए आपके जीवन पर अधिकार जमाने के He लिए। might try to take your attention with a little thought that you are nobody. आपकी वो थोड़ा सा अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे तो तू कुछ नहीं है Hey, you have nothing in your life. और तेरे पास कुछ नहीं है अपने तेरे You जीवन में। haven't achieved anything. तूने कुछ नहीं किया अपने लाइफ में। You have committed this sin. तूने पाप किए हैं। And you have done this thing in secret. तूने ये चीजें अंधेरों में की हैं। You have watched this in the secret. तूने ये चीजें अंधेरों में की हैं। And God doesn't like you anymore. और परमेश्वर तुझे पसंद नहीं You're करता। nothing but a loser in life. तू अभी एक हारा हुआ इंसान है। This is all it needs to do for us to lose our track and focus from God. बस इतना सा जगह चाहिए हमें हमारा जो फोकस है परमेश्वर से हटाने के लिए। The Israelites walking so closely with God, इजरायली थे जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे they ask, is the Lord even among us? और ये पूछने लगे कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं, Is he even listening to us? हमारी आवाज को सुन रहा है या नहीं। Is he even able to get us out of this trouble? वो है भी एबल कि हमें इस ट्रबल से, इस परेशानी से निकाल सके। Is he even able to heal me? वो हमें चंगा कर भी सकता है प्रभु। Is he even able to deliver me? अगर हमें छुड़ा सकता भी कि नहीं। Is he even able to lift me up? क्या प्रभु मुझे ऊंचा उठा सकता है भी कि Is he नहीं। able to even make me the thing he called me, that I am victorious in my life? क्या in my प्रभु वो situation? करेगा जो उसने मुझे बोला है कि मैं विक्ट्री पा सकूं अपने जीवन में। The minute you allow such thoughts, जब आप थोड़े से वो सोचों को लेना शुरू करते हैं, that's enough for enemy to start working in our बहुत lives. है दुश्मन के लिए हमारे जीवन में काम करने के लिए। When we go through a storm, a phase of wilderness, जब हम उस तूफान में से निकलते हैं जो बियाबान का है, no matter what you encounter, कुछ मतलब नहीं कि आप किस चीज को फेस करते हैं। you need to remind yourself that God is able. Hallelujah. आपको कहने की जरूरत है कि मेरा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। I was talking to someone on Thursday, मैं किसी से बात कर रही थी थर्सडे को, and they were sharing their heart, वो अपना दिल मेरे से शेयर कर रहे थे। and I told only one thing. मैंने एक ही चीज बोली, When you believe that God is able, जब आप जानते हैं कि परमेश्वर कर सकता है, every mountain that's standing in your way, जो भी पहाड़ आपके रास्ते में खड़ा हुआ है, it will move in Jesus' वो name. यीशु मसीह के नाम में हट जाएगा। I don't know how it will move. मुझे पता नहीं वो कैसे I हटेगा। don't know how circumstances will change. मैं जानती हूँ कि क्या सिचुएशन आपके But जीवन में I know आएगी। that I serve a God who is able to move that mountains. पर मैं Hallelujah. जानती हूँ कि मैं उस परमेश्वर की सेवा करती हूँ जो परमेश्वर पहाड़ों को हटाने वाला है। हालेलुया। My God is able. मेरा परमेश्वर कर सकता है। Shout a hallelujah if you believe हालेलुया। that. If you believe that, अगर आप जानते तो परमेश्वर के लिए शाउट करें। You do not have to do anything, आपको कुछ नहीं करना होगा, but just a simple thing. आपको कहने इससे आसान चीज करनी है। All you need to do is to come into a posture of prayer, an act of surrender, आपको सिर्फ ये करना है कि प्रार्थना में आना और अपने आप को सरेंडर करना है and say, God, you are able. और कहना है परमेश्वर तू ही कर सकता है। Bible says in James 5:16, जेम्स 5:16 में कहता है, the prayer of a righteous man is powerful. जो राइचस मैन की जो प्रार्थना है वो सामर्थ से भरी है। When you and I come to Lord Jesus, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, no matter how you have lived your life, आपका कैसा जीवन आपने जिया है, no matter what you have done in your क्या past, आपने अपने पिछले जीवन में किया है, but when you come into act of surrender before God, जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हैं, believe that you are made righteous in His blood. विश्वास रखें परमेश्वर ने आपको राइचस बना दिया है। And when you pray in that faith, जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, Bible says that prayer is powerful and effective in Jesus' name. बाइबल कहती है वो प्रार्थना जो इफेक्टिव है और सामर्थी है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are listening from the Lord today? परमेश्वर से आप कितने लोग सुन रहे हैं आज? Say, I receive it in Jesus' name. हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम। Moses was one among the Israelites. मूसा जो एक ही था इजरायलियों में, He is also facing the same problem as the Israelites. वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा था इजरायलियों की If तरह। there was no water for the people of अगर Israel, पानी नहीं था इजरायलियों के लिए, it was the same for Moses too. मूसा के लिए वही बात। He is not carrying extra flasks with him to drink water at convenience. वो कुछ अलग से लेके नहीं चल रहा था। But look at what Moses did.
देखिए कि मूसा ने क्या The किया। best quality of Moses is he took his difficulties to the Lord. Hallelujah. बेस्ट जो उसकी क्वालिटी थी उसके अंदर, जो उसकी मुश्किल थी, वो परमेश्वर के आगे लेकर The गया। first problem was people were accusing him. पहली जो उसकी परेशानी थी कि लोग उसको बोल रहे थे। Already he was also walking with them for 40 days, thirsty like them. There is no water. On top of that, the people were complaining. वो भी उन्हीं लोगों की तरह 40 दिन तक चल रहा था और कंप्लेन उसने बिल्कुल भी परमेश्वर यहोवा की तरफ नहीं की जो इजरायली कर रहे थे। In fact, Moses was in more problem than the Israel. वो मूसा जो था उनसे ज्यादा परेशानी में था। Because he has to stand in the front and lead the people. वो उसको आगे खड़ा होना और लोगों को लीड करना है। And 40 days of experiencing God in mighty miraculous ways, thus saying He is the God even among us. 40 दिन तक परमेश्वर ने बड़े काम उनके जीवन में किए, फिर भी कहने लगे कि क्या परमेश्वर हमारे बीच में है। And as the enemy comes and attacks, जब दुश्मन आता है और अटैक हमला करता there is है, no warning, there is no indication, there is no preparation. The enemy comes and attacks. वो आपको बताकर नहीं आएगा, कोई प्रिपेयर करके नहीं आएगा, वो सीधा आके अटैक करेगा। Moses had a chance to blame people, saying, "Because of you guys, this has happened." मूसा के पास वो चांस था, वो उनको कह सकता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। But the best quality of Moses was to take all his problems, his difficulties to the Lord in prayer. जो क्वालिटी थी मूसा के अंदर, वो अपनी परेशानियों को, मुश्किलों को परमेश्वर के आगे प्रार्थना में लेके गया। The best quality of Moses was to choosing to stand in the gap and intercede and prayer as he surrenders जो before God. अच्छी क्वालिटी थी उसके अंदर कि वो अलग से खड़ा हुआ और प्रार्थना करके उसने उस चीज को परमेश्वर के आगे लगा। He refused to listen to the complaints and doubts of the people. Rather, he stood up with the authority God gave him. उसने लोगों की बातों को सुना नहीं और परमेश्वर की अथॉरिटी थी जो उसके द्वारा मिली थी, उसमें वो प्रार्थना में गया। Verse 11 says, as long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. 11वीं आयत करती है कि जब तक मूसा ने अपने हाथों को उठाकर रखा, इजरायली जीतते रहे। He lifted up the authority and came in an act of surrender and advised Joshua, "You fight the battle while I surrender on behalf of everyone before God." उसने उस अथॉरिटी सामर्थ को यूज किया है। उसने कहा कि जोशुआ से कहा कि मैं अब जब तक अपने हाथों को उठाकर रखता हूं तो लड़ाई को, जंग को जारी रख। You often hear us, or every week you hear us, आप बहुत बार हमसे हर वीक इस बात को सुनते हो, lift up your hands in prayer and worship. पर आपके परमेश्वर के आगे अपने हाथों को उठाओ आराधना और प्रार्थना में। And today we sang a song which I was not like we don't discuss our sermons and worship together. हम अपने सरमन और वर्शिप के बारे में एक दूसरे से बात नहीं करते। But the song said, the new song said, हाथों को मैं ऊपर करता हूँ, in an act of surrender. अपने हाथों को मैं ऊपर उठाता हूँ, सरेंडर करता हूँ। Surrendering hands to God is an act of surrender. सरेंडरिंग, जब हम परमेश्वर के आगे अपने हाथों को उठाते हैं, इसका मतलब हम उसके आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं। It is an act of proclaiming and declaring that God, as long as I surrender to you, I know I'll be victorious. ये एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा तरीका जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर कि जब तक मैं अपने हाथों को उठा के रखूंगा, तेरी ओर ध्यान रखूंगा, मैं विक्टोरियस हूँ। It's that saying, God, as I lift my hands, you are fighting my battles. ये कहना है कि परमेश्वर जब तक मैं अपने हाथों को उठा के रखता हूँ, तू मेरी लड़ाइयों को लड़ रहा है। Verse 11, as long as Moses held up the hands, Israel were winning. जब तक मूसा ने अपने हाथ उठाए रखा, तब तक इजरायली जीतते रहे। But whenever he lowered his hands, the enemy was winning. जब उसने अपने हाथों को नीचे किया, दुश्मन जीतने लगा। An act of surrender touches God's heart. एक्ट सरेंडर है, वो परमेश्वर के दिल को छूता है। Each one of us are meant to be like Moses in our family. हम में से बहुत सब लोग मूसेस की तरह होना चाहिए फैमिली। Not just family, I will say, even in every area that God has placed us in. सिर्फ फैमिली में नहीं, किसी भी एरिया में जहाँ पे परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है। We live lives where uncertainty is not meant to escape. जब हम वो जीवन जीते हैं जहाँ पे हम चीजों से एस्केप नहीं हो सकते। Uncertainty is a portion for everyone's life. जो अनसर्टी है वो हर किसी के जीवन का एक भाग है। And how do you overcome? हम किस तरीके से उससे बाहर आते हैं? Defines who you are. जब वो हमारे बारे में दिखाता है कि हम कौन हैं। In times of uncertainty or problems or situations, ऐसे समय में जब हमारे ऊपर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, rather than giving into stress and anxiety,
give it to God. अपने आप को तकलीफ में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में जाने से अच्छा है कि परमेश्वर के आगे रखें। Come to God in prayer and surrender and say, God, I give it to you. परमेश्वर के आगे आए, उसके आगे झुके, उससे कहें परमेश्वर मैं ये चीजें मैं आपके हाथों में देता हूँ। Just like you made Moses victorious when he surrendered, I want that victory. जैसे तूने मूसा को विजेता बनाया, मुझे वो सेम विजय चाहिए यीशु के नाम में। When we start doing that, जब हम वो करना शुरू होते हैं, we'll start witnessing breakthroughs. हम जो गवाहियों को देखना शुरू करते हैं। When we start doing such act of surrender, जब हम उस सरेंडर एक्ट को शुरू करते हैं, we start witnessing healings. हम देखना शुरू करते हैं चंगाइयाँ, And you will see deliverances. हम देखना शुरू करते हैं डिलीवरेंसेस। And believe me when I say this, जब मेरे विश्वास करें जब मैं ये कहती हूँ, when you surrender to God, जब आप परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हैं, every plan and every scheme of the enemy will be simply destroyed in जो Jesus' भी name. शैतान की जो स्कीमें हैं वो यीशु के नाम में खत्म हो जाएंगी। Shout the loudest hallelujah to हालेलुया, Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Lord is saying to this church, आज परमेश्वर इस छोटे चर्च को कहना चाहता है, when you are willing to surrender today, जब आप अपने दिल को सरेंडर करते हैं, no matter what you go through, कोई मतलब नहीं आप किस में से गुजर रहे हैं, you will come out as more than conquerors. आप बाहर जब विजेता की तरह निकलोगे, Because there is victory in surrender. क्योंकि विक्ट्री जो है, जो विजय है वो सरेंडर में है। Because surrendering to God is an act of acknowledging the power and authority of the one who is in control. जब हम सरेंडर करते हैं वो हमें एक अथॉरिटी है कि जो वो सब जो परमेश्वर हर चीज का कंट्रोल अपने हाथों में रखता है। When you're surrendering, you are actually coming into the mission that God has placed over your life. जब हम सरेंडर करते हैं वो आप उस मिशन में आ जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में रखा हुआ है। And it is not an act of weakness, but it is act of a victorious warrior. ये कोई कमजोरी का एक्ट नहीं है, ये एक जो वॉरियर का एक्ट है। When you acknowledge the power of God over your जब life, आप जानना शुरू करते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में, you are telling that God, you are in control. आप कहना शुरू करते हैं कि परमेश्वर तू कंट्रोल में है। I might have made the stupidest decisions in my life, मैंने बहुत ही खराब डिसीजन बनाए होंगे अपने जीवन or I में, have made a foolish choices in my कई life, मैंने चॉइसेस अपने जीवन में खराब बनाई होंगी, but it's never late in God's पर presence. परमेश्वर के आगे कुछ भी लेट नहीं है। I come here to you. I come here to you. मैं आपके सामने आती हूँ, I surrender to you, God, अब मैं आपके सामने आता हूँ, आपके सामने सरेंडर करता हूँ। because when I acknowledge your power, मैं जब आपकी सामर्थ्य को महसूस करती हूँ, every crooked path will be made straight in जो Jesus' भी टेढ़े name. मेढ़े रास्ते हैं वो सीधे किए जाएंगे यीशु के नाम Every में। enemy will flee from different directions away from your life. वो हर दुश्मन जो हमारे आगे से हट जाएगा यीशु मसीह के And नाम में। God starts delighting in your life to a point that your enemies will be at peace with you. परमेश्वर Hallelujah. आपके साथ जो आपका दुश्मन है आपके साथ पीस में रहना शुरू कर देगा। The act of surrender is also admitting, God, I am weak, but you are strong. जो एक्ट ऑफ सरेंडर है वो बताना है परमेश्वर की कि तू परमेश्वर स्ट्रांग है, मैं कमजोर हूँ। I cannot do anything on my own, मैं अपने God, तरीके से कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर, but I can do only through you. मैं तेरे द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। Maybe some of you have tried to win battles by your own strength. मैं भी कई लोगों ने आप में से कईयों ने अपनी शक्ति के द्वारा वो बैटल जीतने की कोशिश की हो। We get to hear, we speak to families and we mentor some families. हम कई फैमिलीज को मेंटर करते हैं, बात करते हैं उनसे। One of the constant weapon the enemy uses is disagreements. जो एक लगातार जो दुश्मन जो एक वेपन यूज करता है वो है डिसएग्रीमेंट्स। One of the weapons the enemy uses is doubts. जो एनिमी जो यूज करता है हथियार वो है डाउट्स। Here they have been living for such a long time. They know what is their, choices, what their likes and what their dislikes are. Yet they sit with a doubt the enemy has planted in their वो lives. एक दूसरे के अच्छा बुरा जानते हैं, फिर भी वो उन डाउट्स को अपने जीवन में रखते हैं जो दुश्मन ने उनके जीवन Because में it is डाले हैं। comfortable to believe the lie of the enemy ये rather बड़ा- than putting faith in what God has said. ये बड़ा आसान है दुश्मन के जो तरीके हैं उनको अपने जीवन में अपना लेना और परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना रखना। The third point you need to surrender is because when you surrender by stretching your hands, you're actually saying, I'm receiving what you're giving me. जब आप Hallelujah. अपने आप को रखते हैं परमेश्वर के सामने सरेंडर करते तो आप कहते हैं कि परमेश्वर तू ही मजबूत है, तू ही सहारा है। I just want to say this small story. मैं एक कहानी बताना चाहती हूँ। Once a very wealthy man goes to a small town. एक अमीर इंसान एक
छोटे जगह पर जाता है। He stands outside the school and waits for the school bell to ring. वो स्कूल के सामने खड़ा होता है और देखता है कि बेल कब रिंग And he होगी। carries this huge jar of candies with him. वहाँ पर एक बड़े जार को जो कैंडी से भरा होता है उसको लेके जाता है। And as the children run out of the school, जब बच्चे उस स्कूल से बाहर आते हैं he opens the lid and tells the children that they can take as much as their hand can और hold. वो उस जार के ढक्कन को खोलता है और बच्चों को कहता है कि तुम जितना लेना चाहते हो इसमें से ले सकते हो। So all the kids were excited. They palm their hand into the jar. They take as much as they can. और सारे जितने भी बच्चे थे बड़े एक्साइटेड हो गए, उन्होंने अपने हाथों को उस जार में डाला और जितना ले सकते थे ले लिया। The man gets delighted to see how happy the kids वो are. बड़ा खुश होता है कि बच्चे कितने खुश हैं। But in the corner he sees one child just not taking the candies. और उसने देखता है कि एक लड़का वहाँ पर खड़ा है जिसने कैंडीज नहीं ली। And he stays till all the children goes. और वो देखता है जब तक सब बच्चे चले नहीं So this जाते। man goes to that child and says, "Son, do you want to have some candies?" और वो उस बच्चे की तरफ देखता है और कहता है कि तुझे नहीं चाहिए कैंडीज? He says, "Yes, I want." उसने कहा हाँ मुझे चाहिए। Then he asks, "What is stopping you from putting your hand तुझे inside?" क्या रोक रहा है कि हाथ उस जार के अंदर डालने के लिए? And this child gives an interesting answer. वो बच्चा एक बड़ा अच्छा उसको उत्तर देता है। He says, "I want you to give me." वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे दे। So this man thinks for a while and says, "It's okay, you can take how much ever you वो want." बोलता है कि तू जितना लेना चाहता है तू ले ले। The child still refuses. वो फिर भी मना कर देता है। So this man asks, "Why is it you refusing?" वो कहता है कि तू क्यों मना कर रहा है? This boy gives an interesting answer. वो बच्चा एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर He देता है। says, "You look, my hand is small. When I can only grab few. उसने कहा कि तू मेरे हाथों को देख, अगर मैं अपना हाथ उस जार में डालूंगा तो वो थोड़े ही ले सकूंगा। But your hand is big enough to give me more than I can catch." तेरा हाथ जो बड़ा है वो मुझे ज्यादा दे सकता है मेरे से ज्यादा जो मैं The same way when the children of God come in act of surrender and say, "God, I stretch my hand to receive only what you can give." उसी तरीके से जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं और क्या अपने हाथों को उठाते कहते हैं परमेश्वर मैं सरेंडर करता हूँ, रिसीव करता हूँ जो मुझे तू दे रहा है। He will give you more than what you can think or imagine. वो आपको उससे ज्यादा दे सकता है जो आपकी सोचों से बढ़कर वो आपको दे सकता है। One of the principles we have in this church, एक प्रिंसिपल जो हमारी चर्च में है यहाँ पर, and the early days of this ministry, Pastor has made it a very strict point for both of us, शुरुआत की दिनों में हमने एक स्ट्रिक्ट पॉइंट बनाया था that we will not let our hearts waver looking on the number of people. हम अपने दिल डगमगाएंगे नहीं कि नंबर देखने को। This is a God-built ministry, ये परमेश्वर के द्वारा शुरू की हुई मिनिस्ट्री। and we are here only to serve. हम यहाँ पर सिर्फ सेवकाई करते He हैं। said, "I will build my kingdom in the suburb of Marsden उसने Park." कहा कि मैं अपना राज मार्सन पार्क में शुरू करूंगा। And he said, "All you need to do as pastors is surrender." उसने कहा कि तुम्हें सेवक होने के कारण बस सरेंडर करना है। Trust me, church, it was not easy for us. हमारे लिए इजी नहीं था ये सब कुछ। We were in a very, I used to say glorious, but I wouldn't say that anymore. But we were in a good position serving in a different church. हम अच्छी पोजीशन में थे दूसरे चर्चेस में। Most of the church people knew us. हमें सारे चर्च के लोग जानते थे। And when it's Christmas time, our whole car boot is filled with so many presents. That many people would know us. हमारा जो कार का बूट होता था क्रिसमस टाइम पे पूरा भर जाता था, इतने लोग हमें And जानते there came a time where God said, "You need to leave and step out." जो समय आया परमेश्वर ने हमें सिखा कि यार इस जगह को छोड़ के It तुम्हें is निकलना not easy to surrender to God. आसान नहीं है परमेश्वर के सामने सरेंडर It करना। is not easy to leave what is comfortable for you and come to a place where God wants to lead ये you. आसान नहीं है उस कंफर्ट को छोड़ के परमेश्वर उस तरफ जाना जहाँ परमेश्वर आपकी अगुवाई करना चाहता है। Week after week, pastor would lead worship on faith and trusting God. हर वीक पर पास जो थे वर्शिप लीड करते थे, ट्रस्टिंग परमेश्वर विश्वास रखते And थे। I was a Bible study connect leader, and I would teach people about how trusting God and how to put faith in God. और मैं लोगों को बताती थी उस जगह पर कि कैसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। And when we started this ministry, जब हमने ये चर्च को स्टार्ट किया, we had to live by what we preached. हमें उस चीज पे रहना पड़ा जिसको जो हम प्रचार करते थे। For 6-7 months, there was no one in this 6 church. महीने तक यहाँ पर कोई भी नहीं था। Today we didn't have some families come. 3 families did come in. तीन आज 3 or फैमिली 4. जो है 3 या 4 फैमिलीज नहीं आई। If they had come, we didn't have this enough space also. अगर आज वो आ जाते तो हमारे पास ये जगह नहीं होती। In 5 months, God built this to this place. इन 5 महीने में परमेश्वर ने बहुत से लोगों को भेजा। And we are very confident that before end of this year, we will run out in numbers. हमें ये विश्वास है कि ये साल के अंत तक हम नंबर बहुत सारे लोगों को इस जगह पर देखेंगे। Shout an amen to Lord. आमीन।
We said, God, we receive this as we surrender to you. हमने कहा परमेश्वर हम ये सरेंडर करते हैं क्योंकि हम इसको रिसीव करते हैं। We will serve the same way. We were serving the same way when no one was there as we are serving today. आज हम जब कोई भी नहीं था उस समय भी हम ऐसे सर्व कर रहे थे, जब आज हैं उसी समय भी हम ऐसे सर्व कर रहे हैं। Remember that as long as you surrender to God, there is a victory in God's name. याद रखें जब तक आप सरेंडर करते रहेंगे परमेश्वर के आगे आपको विजय मिलेगी। We are not living in days where we are waging physical wars. हम उन जगह पर नहीं जी रहे जहाँ पर हम उन फिजिकल वॉर्स को But we चला are रहे हैं, living in times where there is a constant spiritual war. जहाँ पर हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे लगातार स्पिरिचुअल वॉर्स हो रही हैं। And these wars cannot be won by physical strength, my friends. ये जो लड़ाइयाँ हैं फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ नहीं जीती जाती। No matter what you are going through in your life, आप कोई मतलब नहीं आप क्या किस चीज से अपने जीवन में जा रहे हैं। let me tell you that the battle belongs to the Lord. मैं आपको बताना चाहती हूँ जो लड़ाई है वो यहोवा की है। When you surrender to God as an act of obedience, जब आप परमेश्वर के सामने एक्ट ऑफ ओबीडियंस में सरेंडर करते हैं, the Lord is saying, not by might, not by power, but by my spirit, you are going to win this. ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा तुम इसको जीतोगे। May this word be fulfilled in the lives of those who are receiving it. ये जो वचन है उनके लोगों के जो इसको रिसीव कर रहे हैं फुलफिल हो। Lord is a good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। He loves us abundantly, वो हमें प्यार करता है बहुतायत से and His plans are higher for us. और उसके जो प्लान्स हैं हमारे जीवन में ऊंचे हैं। I was sharing my testimony. I shared my testimony here a few months ago. मैंने अपनी गवाही को थोड़े महीने पहले यहाँ पर शेयर किया And था। yesterday I got a chance to share with someone. मैंने अपनी इस गवाही को किसी के साथ शेयर किया कल। I come from a place where GPS also cannot catch my मैं tongue. ऐसी जगह से आती हूँ जैसे गांव से आती हूँ इंडिया से जहाँ पर जीपीएस भी नहीं है। And pastor is witness to that. पास्टर ने उसको विटनेस किया। When I tried to take pastor after few years of our marriage to my hometown, जब हम कुछ सालों के बाद शादी के बाद हम वहाँ पर गए, I myself forgot the route because there were so many developments. मैं खुद भी उस रास्ते को भूल गई क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें बन And I was गई। trying to look up for a Google map and I couldn't find a route. मैंने गूगल मैप पे कोशिश की पर मुझे रास्ता नहीं मिला। And this cab guy who was supposed to take us to our hometown, और ये जो कैब ड्राइवर था जो हमें लेके जा रहा था घर की तरफ, he took us around and we ended up spending 3 hours extra on the road. हमें 3 घंटे ज्यादा लगे उस रास्ते में। It was supposed to be a 1 hour journey to my hometown. 1 घंटे की जो जर्नी थी। The reason I'm saying this is, मैं इसलिए ये बोल रही हूँ, when I was a little kid, जब मैं एक छोटी लड़की थी, I come from a Baptist background. मैं बैप्टिस्ट बैकग्राउंड के में आती हूँ। I was different from my family. मैं अलग थी अपनी फैमिली There में। was another level of hunger for God. मेरे में एक भूख थी परमेश्वर के लिए, There was another zeal to know who my God is. एक जिज्ञासा थी परमेश्वर को जानने की। And I used to get up along with my grandpa at 5 a.m. in the morning. मैं 5 बजे परमेश्वर के अपने दादा के साथ उठती And I would read Bible in Telugu. और मैं तेलुगु में बाइबल को पढ़ती। I wouldn't understand anything मैं कुछ समझ नहीं because it was like very strong verse. बहुत स्ट्रॉन्ग वर्स, But I used to continue to read. मैं कंटिन्यू करती थी पढ़ना। And I said, God, I want to know you more. मैं कहती थी कि परमेश्वर मैं तुझे और जानना चाहती हूँ। And then God started speaking to me. परमेश्वर ने मेरे से बातचीत करना शुरू किया। God said one thing to me. परमेश्वर ने एक बात मेरे से कही, Though thy beginnings are humble, जो तेरी शुरुआत जो वो हम्बल है, thy later days would be great. तेरे जो आखिरी के दिन है बड़े होंगे। My relatives are witness to who I am today. मेरे रिलेटिव्स हैं वो गवाही हैं कि मैं क्या हूँ आज। My family is a witness to who I am today. मेरी जो फैमिली है वो बताती है कि मैं क्या हूँ आज। Because only one thing in my whole life, if we summarize, it's only act of surrender before God. कि मेरी पूरे जीवन को अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो मैं परमेश्वर के आगे सरेंडर किया। Verse 15, I want to end with this scripture. मैं 15वीं आयत को इस पढ़कर इसको अंत करूंगी। As the Israelites won the war against the Amalekites, जब इजरायलियों ने उस लड़ाई को जीता अमलेकाइट्स के आगे, if I had to say in this verse, is the children of God won over the schemes of the enemy. अगर मैं कहना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर के लोग हैं शैतान की स्कीमों के ऊपर जीते, As the children of God became victorious over the attacks of the और enemy. परमेश्वर के जो लोग थे जीते अटैक्स जो शैतान की तरफ से। Verse 15 says, the Moses built an altar and called it Jehovah Nissi. 15वीं आयत कहती है, तब मूसा ने वेदी को बनाया और उसको कहा यहोवा निसी। The Bible says Jehovah Nissi means the Lord is my banner. बाइबल कहती है कि यहोवा निसी का मतलब है परमेश्वर हमारा झंडा है। Banner is not a small cutout. जो बैनर है वो छोटा कटआउट नहीं होता। It is a big victory flag showing to the nations what the Lord has वो done. एक बड़ा झंडा होता है जो
बताता है कि वो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में It क्या is an किया। indication that the Lord is fighting my battles. वो एक इंडिकेशन है कि जरिया है कि बताने का कि परमेश्वर हमारी लड़ाइयाँ जीत रहा The है। Lord is reminding some of you today, परमेश्वर आप कईयों में से आपको याद करा रहा I है। am Jehovah Nissi. मैं यहोवा निसी हूँ। I am your victory flag. मैं आपका विक्ट्री झंडा हूँ। I am the one fighting your battles. मैं आपकी लड़ाइयों को लड़ रहा हूँ। And I am the one who is going to rip open the Red Seas in front of मैं ही you. वो हूँ जो मैं उस लाल समुद्र को दो भाग कर दूंगा आपके सामने। Even if the Red Sea doesn't rip open, अगर लाल समुद्र भी ना खुले, you will still walk like how Peter walked on the water. आप फिर भी उसी तरीके से चलोगे जिस तरीके से पतरस पानी पर चला। Peter looked at Jesus and boldly took steps on the water. पतरस ने यीशु की तरफ देखा और अपना जो कदम है पानी की ओर बढ़ाया। A little distraction, he started drowning. और थोड़ा सा उसको डिस्ट्रैक्शन आया और वो डूबना शुरू हो गया। But when he stretched his hands before Jesus, पर उसने अपना हाथ जब परमेश्वर यीशु की ओर बढ़ाया, Bible says God pulled him out of the drowning waters. बाइबल कहती है यीशु ने उसको पानी में से बाहर निकाल Come लिया। on, let's stand up to our feet this आइए अपने morning. पैरों पर खड़े हो जाएंगे इस सुबह में। God is reminding you, I am the same God today. परमेश्वर आपको याद करा रहा है कि मैं वही परमेश्वर हूँ आज भी। I am willing to pull you out of those drowning waters. मैं आपको बाहर निकालूंगा और डूबते हुए पानी में से। I will place you in a point of victory. मैं आपको उस जगह पर विजय की जगह पर खड़ा करूंगा। Because I am Jehovah Nissi. क्योंकि मैं यहोवा निसी हूँ। All you need to do is surrender to God. आपको सिर्फ ये करना है कि परमेश्वर के सामने आके सरेंडर करना है। Church, I want to end with one statement today. मैं एक स्टेटमेंट के साथ अंत करना चाहूंगी। It's not just important how we started our journey. ये इम्पोर्टेंट है कि हमने अपने जर्नी को कैसे शुरू किया। It is also important that how we walk in the journey इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम उस जर्नी में कैसे चलते हैं, and how we end that कि journey. हम उसको कैसे खत्म करते हैं। A question is there in front of you this morning. प्रश्न जो आपके सामने है आज सुबह, How are you walking your journey this morning? कि आप कैसे अपने जर्नी में वॉक कर रहे हैं। If you have wavered from your ways, अगर आप इधर उधर हो गए अपने रास्तों से, with every eye closed, हर आंख बंद, every heart surrendered to Jesus this morning. हर एक दिल परमेश्वर के सामने सरेंडर करे इस सुबह में। If you are okay, just stretch your hands towards heaven अगर आप सही हैं तो आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की ओर as an act of surrender एक सरेंडर करते हुए, and say, God, परमेश्वर if I have wavered away from your path, अगर मैं आपके रास्ते से इधर उधर हुआ हूँ, if I have tried to walk my path by my strength, अगर मैंने उस रास्ते को अपनी शक्ति के द्वारा चलने की कोशिश की है, here I am coming back to you, Lord. मैं आपके सामने आता हूँ फिर से दोबारा से। I'm giving it all to you. हालेलुया। Keep your eyes closed. अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठा के रखें और वो प्रार्थना करना शुरू करें जो चीजें आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में पूरी होते हुए। मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को। Start praying those things if you want to see those things to fulfill in your lives. उन प्रार्थनाओं को शुरू करें करना जो चीजें आप देखना चाहते हैं अपने जीवन में पूरी होते हुए। सरेंडर करते हुए कहना शुरू करें परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, ना तो बल से ना अपनी शक्ति से, पर मैं तेरे आत्मा के द्वारा, तेरी प्रेजेंस के द्वारा उन चीजों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहता हूं। मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं आज से, बल्कि मैं प्रार्थना में विश्वास के साथ तेरे आगे आऊंगा। हालेलुया। उसे कहना शुरू करें, परमेश्वर मैं विश्वास के साथ तेरे आगे आता हूं। मैं आज से कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। मैं तुझसे कहता हूं परमेश्वर, मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूं पूरे तरीके से, अपने दिमाग से, दिल से, रूह से पूरे तरीके से अपने आप को सरेंडर करें और उन चीजों के बारे में प्रार्थना करें जो चीजें आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। उन चीजों के बारे में प्रार्थना करें जो चीजें आप अपने जीवन में पूरा हुए देखना चाहते हैं। Surrender those things in front of our God. Tell him, Lord Jesus, I want to see these impossible things turning into possible in Jesus name. Hallelujah. तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर हमारा ना कर सके, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको वो चंगा ना कर सके, ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिसको वो हटा ना सके। हालेलुया। वो
समुद्रों को चीरने वाला परमेश्वर है, वो पहाड़ों को हटाने वाला परमेश्वर है, वो बीमारियों को, मुर्दा को जगह करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखें। हालेलुया। उन मिरेकल्स को याद करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। उन मिरेकल्स को याद करें जिनसे परमेश्वर ने आपको निकाला है। वही परमेश्वर आज भी आपके साथ खड़ा है और वो कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी आवाज को सुन और मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे जंगा कर, मुझे छुड़ा, मैं तेरे आगे सरेंडर करता हूं, सरेंडर करती हूं। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना को करना शुरू करें, विश्वास के साथ। हालेलुया। एक छोटा विश्वास जो राई के दाने के समान है, वो एक बड़े पहाड़ को हटा सकता है। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पर विश्वास कर। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा रचने वाला हूं, मैं तेरा क्रिएटर हूं। मैंने तुझे मिट्टी में से बनाया है, तेरी मां के गर्भ से मैं तुझे जानता हूं। Before the foundation of this world, you were in my mind. Hallelujah. परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है कि वो हमें चाहता है कि हम उसके सामने सरेंडर करें और अपनी चीजों को, अपने दुखों को, अपनी मुसीबतों को, बीमारियों को उसके सामने रखना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए समझन। हालेलुया। उसे कहे, परमेश्वर मैं तेरे आगे सरेंडर करता हूं परमेश्वर। हालेलुया। Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. विश्वास के साथ गाएं, विश्वास के साथ। Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. एक जीवन जिएंगे परमेश्वर की ओर सरेंडर करते हो। और मेरा विश्वास है वो जरूरतें जो आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी पूरी करे, जो चंगाइयां आप चाहते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर ने उन्हें हील कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम तेरे नाम को धन्यवाद देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर इस जगह पर। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, कभी ना बदलने वाला, कभी ना रुकने वाला, सदा तक सेम है परमेश्वर। तेरा प्यार जो है हमारे लिए सदा का, तेरे ऊपर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि तू इस जर्नी में जो मसीही जीवन है तू हमें लेकर चलेगा और हमें विजयी बनाएगा परमेश्वर हर रास्ते में। You'll make us victorious, O Lord Jesus. We bless your name. Hallelujah.
परमेश्वर इस पूरे वीक को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, तेरे बेटे और तेरी बेटियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अगर कोई बीमारी में से गुजरता है तो यीशु मसीह के नाम में उस बीमारी को तू चंगे करने वाला है। हालेलुया। तेरे बेटे और बेटियां परमेश्वर टेस्टिमनी के साथ इस जगह पर आए परमेश्वर। अगर कोई फाइनेंशियल हार्डशिप में से जा रहा है परमेश्वर, यहोवा जायरा, तू हमारा प्रोवाइड करने वाला है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है तू प्रोवाइड करेगा परमेश्वर इस वीक में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदावंद अपने बेटे और बेटियों को अपने लहू में ढके परमेश्वर, हर शैतानी चालाकी से, हर बुरे हथियार से जो शैतान की ओर से आता है उससे बचा के रखे परमेश्वर। अपनी प्रेजेंस में ढक के